Yesterday, we were discussing W.B. Yeats' poem, A Prayer for My Daughter, and we discussed a small portion of that poem. So, this is a kind of prayer, wishes of a poet for his daughter. The poet is mentally disturbed at the conditions of the world. First World War has just ended, and there are strifes and struggles in his own country, Ireland, and he is walking on the roof of his house and he wishes something. He has a little daughter, infant, she's still infant, and he prays something for her. Annie Hathaway is her name. She will not need so much food. So there are storms and these things. These external realities reflect the internal disturbance in the poet's mind. So Annie Butler Yeats is the name of the daughter. And she was born on the 24th of February 1919. So he wishes her to be beautiful, but he says that she should not be extremely beautiful, because extremely beautiful people are always engaged in their physical well-being and physical, they become narcissistic and they disturb other people's peace of mind also. So he doesn't want her to be extremely beautiful, because beautiful persons put the whole family, whole nation, whole society into trouble. So where should we begin? It's 30 line number 30. What is the first line? It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of blood is undone. This is done. Now in courtesy, I would have her chiefly learned. Hearts are not had as a gift, but hearts are earned. ये बहुत अच्छी लाइन है. He wishes her to be a courteous, well-mannered girl. And he says that hearts are not had as gifts. आपको प्लेट में रख के दिल नहीं सौंपे जाएंगे, दिलों को जीता जाता है, कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, न कि कोई प्लेटों में रख करके आपको सर्व कर दिए जाएं. तो कमा कौन सकते हैं, दिलों को जीत कौन सकते हैं? जो कोर्टियस हो, जो दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हों, जो सेंसिटिव हों. और मैं अपनी डॉटर को सेंसिटिव, सेंसिबल, कोर्टियस, वेल मैनर्ड, कल्चर्ड देखना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी हो. So hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. जो entirely extremely beautiful है, उनके तो हार्ट ही हार्ट कदमों में बिछ जाएंगे. लेकिन वो हार्ट्स, वो कैसे होंगे लोग? वो डिवोटेड नहीं होंगे, वो डेडिकेटेड नहीं होंगे, वो तो अट्रैक्टेड हार्ट्स होंगे. तो उन हार्ट्स की कोई वैल्यू नहीं. वो सेल्फिश. तो जो बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नहीं है, उनको तो हार्ट्स को जीतना पड़ता है. तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन वो कर्टियस हो, वेल मैनर्ड हो, कल्चर्ड हो, ताकि वो दिलों को जीते. Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that is loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. अब ये बहुत इन एन ओब्लिक मैनर, एक तरीके से घुमा फिरा के ये अपनी बात, क्योंकि हम कभी भी कुछ लिखें और अपना अनुभव ना आए, ये संभव नहीं है.
हम 4 लाइन लिखेंगे तो अपना अनुभव तो आएगा ही आएगा, हम कहानी लिखेंगे तो आएगा ही आएगा, चाहे हम किसी और के ऊपर कहानी लिख रहे हैं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस, अपने व्यूज़ तो आएंगे। तो ही इज़ प्रेइंग फॉर हिज डॉटर एंड इज़ राइटिंग अबाउट हिज डॉटर्स फ्यूचर, येट ही thinks about himself, about his past experiences. So he says, yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise. बहुत सारे लोग ब्यूटी में फंस जाते हैं, है ना, दे आर ensnared. हैज़ चार्म मैड वाइज, चार्म का ही वो उपयोग करते हैं हर चीज़ में, बुद्धि की तरह। एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज़ loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. और बहुत सारे बेचारे लोग, आदमी, पुअर मैन, रोविंग होता है बोट चलाना, नाव चलाना, यानी बहुत भटके, लव्ड, उन्होंने प्रेम भी किया किसी से, और ये सोचा भी उन्होंने कि उनको भी प्रेम मिला, फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस। काइंडनेस एक तरह से पर्सनिफाइड है कि भाई लेडी ऑफ काइंडनेस, दयालुता की देवी से उनको मिला है। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आईज, अपनी आंखें वो हटा नहीं पाते खूबसूरती से, उसके जाल में फंस जाते हैं, है ना, और ये सोचते हैं कि उन्हें भी प्रेम मिल रहा है। मे शी बिकम ए फ्लरिशिंग हिडन ट्री, हे मे, ये एक विश है, मे यू लिव लॉन्ग में, है ना, तो मे शी बिकम ए फ्लरिशिंग हिडन ट्री, वो फलता फूलता हिडन ट्री, एक छुपा हुआ पेड़ की तरह बने। That all her thoughts may like the linnet be, and that and have no business but dispensing round their magnanimities of sound. ऐसा पेड़ बने विशाल एंड फ्लरिशिंग, लदा हुआ फूलों से, पत्तियों से, और उसके थॉट्स जो हैं, एक लिनट पक्षी होता है छोटा सा, पेड़ों के बीच में बैठ जाता है और वो चहचहाता है और सारी दुनिया सुनती है, पर वो पक्षी दिखाई नहीं देता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो खूब फलती फूलती है, एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला पोइट है ना, तो ये चाहता है कि बहुत संपन्न हो, प्रॉस्पेरिटी खूब हो, और बहुत विचारों से भी रिच हो, संपन्न हो, और उसके जो विचार हैं, लिनट पक्षी जैसे पेड़ों के झुरमुट में छिपा बैठा गाता रहता है, और अपनी मैग्नेनिमिटी, अपनी उदारता, अपनी काइंडनेस, अपने लिबरल थॉट्स, चारों तरफ अपनी म्यूज़िकल साउंड, और दूसरों को अपील करे, दूसरों को खुशी दे, ऐसे विचार जैसे लिनट पक्षी पेड़ के बीच में छिपकर फैलाता रहता है सारे आसपास की जगहों पर। आई विश माई डॉटर टू बी ए फ्लरिशिंग ट्री एंड हर थॉट्स लाइक ए लिनट बर्ड, है ना, विच स्प्रेड्स joy and music and everything, happiness around him, unseen. हाँ, एक तो सीन जो थी Maud Gonne, whom he loved, she was a politician and she attracted everybody. She was a very beautiful, extremely beautiful, charming politician. तो वो तो सबको ही दिखती थी, है ना, और मैं वैसी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये गुमनाम, ये कहीं कविताएं लिखे या कुछ करे ऐसा कि चारों तरफ जोए बिखेरे, उसका नाम हो, उस दूसरों को लिबरल थॉट्स दे, नैरो माइंडेड ना हो, एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नेटिमिटीज ऑफ साउंड। जैसे लिनट पक्षी का कोई काम नहीं है, केवल अपनी आवाज़ की खूबसूरती बिखेरता रहता है, वैसे ये भी अगर पेंटर बने या म्यूजिशियन बने या पोइट बने, अपनी जो मैग्नेनिमिटी है, उदारता है, लिबरल जो थॉट्स हैं, सारी दुनिया में ये फैलाती रहे लगातार।
nor but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel. अगर ये कोई कंपटीशन करना अगर ये करे भी तो एक हेल्दी माइंड से करे, ऐसे नहीं कि इसको डिस्ट्रॉय करो तभी मैं आगे। मैरीमेंट में, हंसी खुशी में, प्लेजर के लिए ही कंपटीशन compete करे। इफ़ शी एवर competes with someone, nor but in merriment a quarrel. अगर इसका झगड़ा भी होता है तो ऐसे नहीं कि साहब इसको ये ख़त्म हो तभी मैं खुश हूँ, हम दोनों में से एक ही रह सकते, ऐसा नहीं। झगड़ा है तो दोस्ती का झगड़ा हो, हाँ, डिबेट की तरह हो, आपस में कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, गेम स्पिरिट है। ये गेम स्पिरिट पूरी लाइफ में होनी चाहिए, गेम्स में ही नहीं होनी चाहिए, वो हर कहीं, वो पढ़ाई में भी होनी चाहिए, वो बिजनेस में भी होनी चाहिए, वो करियर में भी होनी चाहिए, वेर एवर। तो मैरीमेंट एक गेम स्पिरिट के साथ अपनी ज़िंदगी को ये जिए, है ना, खुशी खुशी के साथ। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। मैं ये चाहता हूँ कि वो लॉरेल, एक वहाँ का जैसे अपने यहाँ तुलसी का पौधा होता है ना, बहुत पवित्र पौधा होता है, उनके वहाँ पे लॉरेल एक एवरग्रीन प्लांट है जो सिंबॉलिक भी है, वो पायस प्लांट है। जब ओलंपिक में लोग मेडल जीतते हैं तो यहाँ लॉरेल भी बांधा जाता है, कहीं यहाँ बांधते, पहले यहाँ बांधते थे, आजकल यहाँ भी कोई पत्ती बांध देते हैं। वो एक ये है सिंबॉलिक कि भाई ये विजेता है। तो ये जो एवरग्रीन लॉरेल प्लांट की तरह जो है, ये रूटेड एक परपेचुअल प्लेस में ये, है ना, खड़ी रहे। ऐसे नहीं है अपरूटेड, अपरूटेड तो कौन से होते हैं मैंने बताया था, कोई दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पे खूब संपन्न हो गए, लेकिन आपकी जड़ें तो आई नहीं, जड़ें तो आपकी अपने गांव में ही हैं, अपने शहर में, अपने देश में, अपने राज्य में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, ज़मीन से जुड़ी हुई, ये ज़मीन से जुड़ी रहे, है ना। तो जैसे लॉरेल ट्री अपनी एक जगह जुड़ा रहता है और एवर ग्रीन रहता है ना, बिल्कुल सघन ग्रीन रहता है, यानी खुश रहता है, प्रोस्पर रहता है, संपन्न रहता है, हैप्पी रहता है, वैसे ही ये भी अपनी ज़मीन से जुड़ी रहे और जो कुछ लिखे, पढ़े, गाए, पेंटिंग जो भी कुछ करे, तो इसके माध्यम से सारी दुनिया में खुशियाँ फैलाए। मैं नहीं चाहता कि ये अपनी जगह जड़ से उखड़ के कहीं दूसरे देश में जाके बस जाए, बहुत संपन्न भी हो गई तो कोई मज़ा नहीं है जब तक कि अपने लोगों के बीच में ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ परपेचुअली, परमानेंटली, है ना, एक जगह अपनी जड़ों से ये जुड़ी रहे। माई माइंड, बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, द sort of beauty that I approved, prosper but little had dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be in evil chances chief. अब he talks about himself. ये कह रहा है कि मेरा जो दिमाग है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से प्रेम किया, बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, उस वजह से मेरा माइंड, द sort of beauty that I approved, और जिस तरह की ब्यूटी मैंने अपनी जवानी में लाइक की थी, पसंद की थी, वो prosper but little has dried up of late. मेरा माइंड अब थोड़ा ड्राई हो गया, संपन्न नहीं हो पाया, युवावस्था में, जवानी में मैं खुश नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे प्यार तो दिया लेकिन मिला नहीं, है ना। मैं नहीं चाहता ये ऐसी स्त्री बने जो लोगों को इग्नोर करे। अब ये खुद के लिए कह रहा है कि मैंने जिस ब्यूटी को अप्रूव किया वैसा मुझे वो उस ब्यूटी से कोई रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो प्रोस्पर बट लिटिल, बहुत ही कम संपन्न हो पाया, कम खुश हो पाया। हैड ड्राइड अप ऑफ लेट, और कुछ दिनों से तो ये एज फार एज लव इज कंसर्न्ड, वो फीलिंग मेरे सूख गई है। ड्राइड अप ऑफ लेट, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चांसेस होते हैं,
कुछ भी हो सकता है लाइफ में। ये कह रहा है कि क्योंकि मेरा दिमाग निराश हो गया प्रेम की तरफ से, तो बहुत सारी संभावना है कि ये भर जाता नफ़रत से। प्रेम, जिनको प्रेम नहीं मिलता वो नफ़रत से भर जाते हैं। इसलिए अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं वो नफ़रत से क्यों भरे? क्योंकि उनको प्रेम मिला नहीं जहाँ से वो चाह रहे थे। तो वो वहाँ नेग्लिजेंस की वजह से ये क्या है, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये कह रहा है बहुत सारा चांसेस हैं कि जहाँ से आपको प्रेम न मिले वहाँ उस तरफ आप नफ़रत से भर जाते हो, है ना। may well be of all evil chances chief if there's no hatred in a mind। अगर किसी दिमाग में नफ़रत ना हो तो क्या हो? तो ना प्यार होगा, ना नफरत होगा, न्यूट्रल तो हो नहीं सकता। Assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf। अब ये लिनट वाला जो ये सिमली इसने पहले पिछली दी थी ना कि पेड़ के बीच में लिनट पक्षी की तरह इसका दिमाग हो जो खुशियाँ बिखेरे। यहाँ वापस ये आता है, ये कह रहा है कि अगर दिमाग में नफ़रत ना हो, है ना, तो कितने भी आप पर कोई हमले करे, कितने भी आपकी आलोचना करे, नेग्लेक्ट करे। लिनट जिस तरह से पक्षी जो है डाल को पकड़ के, छोटी चिड़िया है बीच में बैठी रहती है और गाती रहती है, वो बहुत टाइट पकड़ती है अपनी जगह को, तो कितने भी तूफान आए वो गिरती थोड़ी है, उड़ती भी नहीं, वो तो बैठी रहती है जकड़ के। तो अगर दिमाग में नफ़रत ना हो तो असॉल्ट एंड बैटरी, असॉल्ट करती है ना आर्मी, बैटरी करती है गोलीबारी, तो हवा के हमले भी उसको, लिनट को पत्ती से अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से हवा के हमले लिनट को पत्ती से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह ऐसा दिमाग जिसमें नफ़रत न हो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। वो मतलब निराश नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता, हताश नहीं हो सकता, वो छोड़ के जा नहीं सकता, वो अपनी जड़ों को पकड़े रहता है ना। तो मैं नहीं चाहता कि इसके दिमाग में नफ़रत भरे। आगे ये कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल लोगों में नफ़रत बहुत होती है, बौद्धिक लोगों में जिनमें दिमाग ज़्यादा होता है ना, उनमें नफ़रत ज़्यादा बढ़ती है। जो सिंपल लोग हैं, जो खेती करता है किसान, उसके दिमाग में नफ़रत नहीं भरेगी क्योंकि उसके कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है, वो तो डाउन टू अर्थ है, वो अपनी ज़मीन से जुड़ा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन इसीलिए बौद्धिक लोग, बुद्धिजीवी लोग, 4 लोग साथ नहीं बैठ सकते। संस्कृत में श्लोक भी है कि अज्ञानी लोग तो बैठ सकते हैं 10 एक साथ, दिन भर हंसी मजाक करते रहेंगे वो, लेकिन पढ़े लिखे 3 लोग साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके इश्यूज़ आ जाते हैं। 4 लाइन बात करेंगे तो वो विचार नहीं मिले तो वो नफ़रत से भर जाएंगे। इसको मारो, इसको पीटो, इसको हटाओ, इसको दुनिया से हटाओ, ऐसी बात। तो इंटेलेक्चुअल हैट्रेड is the worst hatred according to the poet. An intellectual hatred is the worst. ऐसी अब अपन यहाँ देखते हैं, मान लो रेल के डिब्बे में 4 लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, विचार नहीं मिले, एक तो इस पार्टी का समर्थक है, एक उसका, तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और मन में कुड़ते रहेंगे जब तक कि अगला स्टेशन नहीं आ जाए। तो ये इंटेलेक्चुअल हैट्रेड है ना, ये ज़्यादा होती है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो ये सोचे कि ओपिनियंस बहुत बेकार चीज़ है। अकर्स्ड यानी श्रापित चीज़ें हैं, मतलब बहुत बेकार चीज़ है। ओपिनियन मत पालो कि भाई ये मेरी ओपिनियन यही है। हाँ, अकर्स्ड यानी श्रापित। तो ये कह रहा है कि एक्चुअली hatred being cultivated by the Irish intellectuals for the English rulers of Ireland। इस जैसे पॉलिटिशियंस के बीच में ये रहा ज़्यादातर टाइम, और पॉलिटिशियंस जो इंग्लिश रूलर्स थे उनसे घोर नफ़रत करते थे, है ना, जनता से हमले करवाना, ये करवाना हो। तो ये कह रहा है कि
कि थोड़े दिन रहा पॉलिटिक्स में, एंड देन ही वाज फेड अप विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड ही सेड नो, आई एम नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। उसने पॉलिटिक्स बाद में छोड़ दी, क्योंकि एक एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला पोइट था, और ये नफ़रत है, चीखना, गुस्सा, ये चीज़ें, इमोशंस जो है ना, एलिमेंट्स, ये जो बेसिक इमोशंस हैं, ये इनको पसंद नहीं करता था। हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी विचारधारा को तो आप नापसंद करो, इंसान को नापसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया तो कई पॉलिटिशियंस तो ये थे भाई इनको शूट करो, इनको मारो, इनको हमले करो। कई ये मानते थे कि भाई ये तो लोग हैं। कॉलोनियल विचारधारा से नफ़रत करो, है ना। अपराध से नफ़रत करो, अपराधी से मत करो। किसी ने आप कि कोई चीज़ चुरा ली, पैसे चुरा लिए, तो आप उस आदमी से नफ़रत मत करो। चुराना एक कॉन्सेप्ट बुरा है, उस कॉन्सेप्ट से नफ़रत करो, है ना। जब सब उस कॉन्सेप्ट चोरी करने को बुरा मानेंगे तो चोर बनेगा ही नहीं, हैं। और हर इंसान को अच्छा बनाने की तरफ हमारा समाज बढ़े तो क्राइम होगा ही नहीं। आप जो चोरी करता जाएगा उसको जेल में डालते जाओगे तो जेलें छोटी पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने क्राइम से नफ़रत नहीं की, केवल उस इंसान से की है। इंसान ने तो आवेश में आके कर ली चोरी, है ना। माइंड वॉश, हाँ, ब्रेन वॉश से भी और ज़रूरत से भी, किसी से भी, उसकी कोई भी परिस्थिति हो सकती है, हैबिचुअल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्राइम बुरा है। आप खुद तो क्राइम करो, आप दूसरे तरीके से करते हो, हैं। कोई रिश्वत ले रहा है, कोई, वो भी तो चोरी है, लेकिन वो उसको आप बुरा नहीं मान रहे, और दूसरा आपका चुरा रहा है तब आप उसको जेल में डाल रहे हो। तो इस विचारधारा को, किसी का भी दूसरे के पैसे पर अपनी नीयत खराब करना, ये विचार गलत है, ये चीज़ फैलानी चाहिए। लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकस्ट। ओपिनियन मत बांधो, अपने विचार बांध लिया और उससे बंध गए, ऐसा नहीं है। लिबरल होना चाहिए। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बोर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न। क्या मैंने नहीं देखा कि एक सबसे प्यारी महिला जो कि माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न यानी एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी। मॉडगॉन से मतलब है इसका, मॉडगॉन was the woman whom he loved very much। लेकिन उसका दिमाग जो था ओपिनियनेटेड था, ओपिनियन से भरा था कि मेरे जो विचार हैं वही सही हैं, और उसके लिए वो लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, और पॉलिटिक्स में थी, यानी उसके साथ बहुत बड़ी जनता भी थी, और वो जनता में भी वो भरती जा रही थी अपनी ओपिनियन। ऐसे लोग होते हैं ना, अपने चारों, मतलब अपने आपके विचार अग्रेसिव है, आक्रामक है, इनको नष्ट कर दो, इस ग्रुप को नष्ट कर दो, इस धर्म के लोगों को नष्ट कर दो, और ये विचार आप अपने फॉलोअर्स में भी लगातार भरते रहते हो, हैं। तो वो नफ़रत ही नफ़रत फैला दी आपने, चारों तरफ फैला दी, खुद भी नफ़रत से भरे हो और अपने फॉलोअर्स में भी नफ़रत। तो ये कह रहा है इतनी खूबसूरत महिला, इतनी समृद्ध रिच फैमिली में पैदा हुई महिला, लेकिन उसका दिमाग ओपिनियनेटेड था, ओपिनियन से भरा पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि वो because of her opinionated mind bartered that horn and every good by quiet nature's understood for an old bellows full of angry wind। बार्टर सिस्टम क्या होता है? हाँ, नाच के जाए, चीज़ के बदले चीज़ जो लेना। तो ये एक इतने संपन्न घर में पैदा हुई, इतने कल्चर्ड घर में पैदा हुई। शी वॉज अ वेल मैनर्ड लेडी, हैं, लेकिन but she had an opinionated mind। Her mind was full of opinions, prejudiced mind you can say, पूर्वाग्रहित दिमाग, ये जो बैठा है वही बैठा है। तो उसने क्या किया कि अपना जो जो है प्लेंटीज हॉर्न, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी है, जो अपनी कल्चर है, जो अपनी वैल्यूज़ हैं, मैनर्स हैं, उन सब को बार्टर अवे कर दिया। किसके बदले? यानी जो उसके पास जो कुछ था, दैट हॉर्न एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर अंडरस्टूड। जो समझदार लोग जिस चीज़ों को अच्छा मानते हैं वो उसके पास थी, लेकिन उन सब अच्छी चीज़ों को, जैसे चूल्हे में फूंक देने के लिए फूंकनी होती है ना, ज़ोर से हवा मारते हैं वो आग लग जाती है, ये उसने वो फूंकनी ले ली
जिसमें वो तेज़ी से फूंक मारती है और दुनिया में आग लग जाती है। कहीं दंगे फैला दिए, कहीं फसाद फैला दिए। तो हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसा करते, सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं। अच्छे घरों के लोग हैं, पढ़े लोग लिखे लोग हैं, दे आर कल्चर्ड, दे आर वेल मैनर्ड, बट दे स्प्रेड हैट्रेड इन द सोसाइटी because their minds are prejudiced against a religion, a caste, a group of people. तो ये मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी, I don't want my daughter to be opinionated, to be a prejudiced person, because I don't want her to spread hatred in the society. जो प्रेजुडिस्ड लोग हैं वो नफ़रत फैलाते ही फैलाते हैं। तो प्रेजुडिस्ड से परे, ओपिनियन से परे, आपको दूसरे धर्म की लाखों बातें अच्छी हैं, उनको देखो, उनको समझो, उनको जानो, अपने धर्म की भी समझो, अपने धर्म की कमियां हैं उनको भी देखो और लोगों को बताओ कि भाई ये कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि कमियों को भी अच्छा इसलिए बताओ क्योंकि हमारा है, और दूसरों की अच्छाइयों को कमियां इसलिए बताओ क्योंकि वो उनका है। इस तरह की ओपिनियनेटेड मैं अपनी बेटी को नहीं होने देना चाहता। कंसिडरिंग दैट ऑल हैट्रेड ड्रिवन हेंस, अब ये मानते हुए कि सारी नफ़रत निकल जाए इसके दिमाग से, द साउल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। अगर नफ़रत निकल जाए दिमाग से तो हमारी जो आत्मा है वो परम इनोसेंट हो जाती है, मासूम हो जाती है। कितना प्लेजर है मासूमियत में, कि आपके दिमाग में जहर ही नहीं है, सिर्फ भोलापन है, हैं? तो वो जो भोलापन है वो आपके चेहरे पर भी आता है। जो चालाक लोग हैं उनके चेहरे पर चालाकी आ जाती है, जो नफ़रत से भरे हुए हैं उनके चेहरे पर नफ़रत झलकती है। तो आपके अंदर जो है हार्ट में, वो आपके चेहरे पर आती ही आती है, हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नफ़रत निकल जाए तो रेडिकल इनोसेंस will descend upon her and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting. Self-appeasing or affrighting. तो अगर इनोसेंस आ जाएगी, रेडिकल इनोसेंस, तो वो सेल्फ डिलाइटिंग होती है। वो दिस मेक्स यू हैप्पी इवन व्हेन यू आर अलोन, वो लिनट बर्ड की तरह, और वो स्प्रेड भी करते हैं हैप्पीनेस। सेल्फ अपीजिंग, सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, ऐसे नहीं मुझे ये चाहिए वो भी चाहिए, ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर संतुष्टि नहीं है। जब रेडिकल इनोसेंस उतर जाएगी तो आप अकेले भी बैठे हो तो 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे, कई लोगों को 2 मिनट बैठाते ही बेचैन हो जाते हैं, अकेले नहीं बैठ सकते। किसी को पकड़ेंगे, पड़ोसी को पकड़ेंगे, साथी को फ़ोन करके बुलाएंगे कि तू आ, मैं अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ, हैं? क्योंकि वो उनके पास कंटेंट नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। सेल्फ अफ्राइटिंग, गलत करने से, कोई गलत काम करने से भय, अफ्राइट यानी भय। तो रेडिकल इनोसेंस आएगी, आ जाए, अगर हैट्रेड निकल जाए तो रेडिकल इनोसेंस आएगी, और रेडिकल इनोसेंस आएगी तो गलत काम करने से डरेगा इंसान। अगर इनोसेंस नहीं है तो आप, हाँ भाई करना है, ये करना है, ख़राब करना है, ये ख़त्म करना है, वो मारना है, ये जलाना है, चलो, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, 2 मिनट लगते हैं। एंड दैट इट साउंड स्वीट विल इज़ हेवंस में विल। और जब रेडिकल इनोसेंट आ जाती है तो जो आपकी जो इच्छा वो वही ऊपर वाले की इच्छा होती है, यानी भगवान का ही एक रूप इंसान हो जाता है ना? गॉड की विल ही आपकी विल हो जाती है। शी कैन दो एवरी फेस शुड स्काउल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल और एवरी बेलोज बस्ट, बी हैप्पी स्टिल। सारी दुनिया अगर उस पर नफरत करे, सारी दुनिया अगर, जितने भी तूफ़ान चल रहे हैं सारी दुनिया में, चारों तरफ तूफ़ान है और चीख रही है आवाज़ें, हवाएं, है ना, हाउल कर रही है, हॉलिंग साउंड निकल रही है, भय पैदा हो रहा है सारी दुनिया के लोगों में। लेकिन अगर किसी में सेल्फ, ये जो है ना, ये रेडिकल इनोसेंस, चाहे दुनिया में चीख पुकार मच रही हो, रेडिकल इनोसेंस वाला आदमी शांत बना रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है ना? आत्मसंतुष्टि।
तो चाहे सारे चेहरे उस पर चीखें, चिल्लाएं, नफरत करें, घृणा करें, उसको गाली दें, चाहे सारी दुनिया में अस्त व्यस्त हो रही हो, युद्ध हो रहे हो, वार, बैटल, क्राइम हो रहे हों, तो भी वो शांत बने रहते हैं, है ना। एवरी बेलोज बस्ट। और जो धोखनी की तरह चीखने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, चिल्ला चिल्ला के मर जाए, है ना, लेकिन रेडिकल इनोसेंस वाले लोगों की साउल हमेशा हैप्पी रहती है, हैप्पी स्टिल, हमेशा खुश रहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उसने उस धर्म वाले को क्या कह दिया, उस धर्म वाले ने क्या बदले में कह दिया। ये हमारे टीवी चैनल चलते हैं ना, जब वो धोखने की तरह सारे के सारे चिल्लाते हैं और समझ में एक का नहीं आता। ऐसी स्थिति में भी रेडिकल इनोसेंस वाले लोग शांत भाव से उनको देखते हैं कि ये लोग हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन उनको कोई नफरत नहीं होती। ठीक है, अगली बार देखेंगे, नए चुनेंगे। ओपिनियनेटेड लोग क्या हैं कि भाई कौन सी पार्टी का बोल रहा है तो मैं भी उसकी तरफ हूँ, तो उससे नफरत बढ़ती है। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनियस। मैं चाहता हूँ, अब ये आ रहा है उसके मैरिज वाले पार्ट पर, कि जब ये बड़ी हो जाए तो इसका ब्राइड ग्रूम, इसका दूल्हा उसको ऐसे घर में ले जाए जो बहुत संपन्न हो, एरिस्टोक्रेटिक हो, अकस्टम्ड हो, हर चीज़ सिस्टम के हिसाब से चलती हो, सेरेमोनियस हो, यानी सेरेमनी के रूप में कोई भी काम सेरेमोनियसली हो, ऐसे नहीं चुपचाप ये बेटा कुछ और कर रहा है, वो बेटा कुछ और कर रहा है ना, सबको साथ लेकर के और सेरेमनी के साथ हर प्रोग्राम हो। फॉर एरोगेंस एंड हैट्रेड आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स। क्योंकि घमंड, क्योंकि नफरत, ये वो चीज़ें हैं, वेयर्स यानी चीज़ें, वो सामान हैं जो ये कंधे पे डाल के चिल्लाते हुए जाते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, है ना, डोर टू डोर, उनके काम की चीज़ें हैं हैट्रेड एंड नफरत। जहाँ प्रेम है, जहाँ इनोसेंस है, जहाँ कल्चर है, सेरेमनी है, ट्रेडिशन है, वहाँ एक जगह रुके हुए पेड़ की तरह, एवरग्रीन लॉरल प्लांट की तरह शांति से सब काम अपने आप चलता है, सिस्टमेटिकली, स्टिल और स्ट्रॉन्ग हो चलता है। और ये हैट्रेड वाले लोग हैं, एरोगेंस वाले लोग हैं, ये पोटली बांध के बाजार में चिल्लाते हुए जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, जो बेवकूफ़ बन जाता है वो ले लेता है। पेडल्ड इन द थोरोफेयर, थोरोफेयर में मतलब हाउस टू हाउस, डोर टू डोर ये बेचे जाते हैं, जैसे ड्रग पेडलिंग होती है ना, पेडल मतलब इस तरह का बेचे जाना। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। तो कस्टम एंड सेरेमनी, कस्टम यानी कल्चर, जो कस्टम चलता आ रहा, ट्रेडिशन, और सेरेमनी यानी ऑब्जर्वेंस ऑफ गुड मैनर्स, इसी में इनोसेंस और ब्यूटी होती है ना। इनोसेंस भी इसी में होती है कि हर चीज़ आप कर रहे हो, मतलब आपको हर चीज़ में संघर्ष करना पड़े, वो कोई लाइफ नहीं है। हर चीज़ वेल सेटल्ड हो, इस्टेब्लिश्ड हो, कल्चरल तरीके से कस्टमाइज्ड हो, है ना। कस्टम मतलब एक ट्रेडिशन के सेंस में हर चीज़ बनी हो, उसको हम फॉलो करते रहें, एंजॉय करें। वो वहीं पे इनोसेंस एंड ब्यूटी है। सेरेमनी इज ए नेम फॉर रिच हॉर्न। तो जहाँ एरिस्टोक्रेसी है, रिच हॉर्न है, वहीं पर सेरेमनी, वही उसका इस सेरेमनी दूसरा नाम है ना। एक ग्रांड तरीके से, एक शानदार तरीके से कोई काम को किया जाए सेरेमोनियसली। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ लॉरल ट्री, है ना। लॉरल ट्री से यहाँ मतलब है जीनियलिटी, डेलिकेसी, कोमलता, इनोसेंस, ये चीज़ें है ना कस्टम से जनरेट होती है। आप मान लो, अब इसके दूसरे अपोजिट में कौन लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेटिक और कस्टम वाले लोग, ट्रेडिशन वाले लोग। इससे अपोजिट होते हैं जो अपरूटेड लोग हैं, नौकरी की तलाश में कहीं के कहीं चले गए, ना वो कोई कल्चर में उनकी कल्चर होती है, क्योंकि
खुद की जगह में तो कल्चर होती है, बट वंस यू हैव लेफ्ट योर प्लेस एंड यू हैव गॉन टू सम अदर प्लेस फॉर जॉब एंड यू हैव फाउंड ए गुड जॉब, बट देयर इज़ नो कल्चर देयर। आपका परिवार तो पीछे है, आपके समाज के लोग तो पीछे हैं, आपके साथी संगी सब पीछे हैं पुराने, अब नए मिले हैं जो कि आपके अवसरवादी दोस्त होते हैं, है ना। आपका सही चल रहा है तो दोस्त हैं, आपका सही नहीं चल रहा सब कुछ तो नहीं है। तो अपरूटेड लोग वेल मैनर्ड भी नहीं होते, क्योंकि आप एक जगह हो, हर आदमी आपका चाचा दादा मामा हर आदमी है, भले ही वो ब्लड रिलेटिव ना हो, लेकिन आप सबको चाचा बाबा काका चाचा नाना जो भी बोलते हो। लेकिन एक अनजान जगह पे मैं बॉम्बे में चल जा कर के कहीं पर कोई मकान लेकर रहूँ, मेरे लिए सब अजनबी हैं, तो मेरे लिए आई विल नॉट बी ए कल्चर्ड पर्सन एंड आई विल नॉट फॉलो सेरेमनी। मैं अकेला क्या सेरेमनी करूँ, मुझे कोई त्यौहार मनाना है, अब मैं अकेला ही तो रहता हूँ, दूसरे तो जानते ही नहीं मेरा त्यौहार, तो वो मतलब वो अपरूटेड लोग हैं, वो अपनी जड़ से कटे हुए लोग हैं। उनको अपनी कल्चर, अपनी सेरेमनी, अपनी ट्रेडिशन, अपने कस्टम से दे हैव नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स, जो है ना एवर ग्रीन बनाती है आपको बनाती है, इनोसेंट बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो सब चीज़ें उस जगह पर नहीं है, नई जगह, तो वो अपरूटेड है। उसके बजाय येट्स इज़ इन फेवर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज़ सोसाइटीज़, है ना, जो कि कई वैल्यूज़ रखते हैं, कल्चरल भी होते हैं और आर्टिस्टिक भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चाहता है कि इसकी बेटी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जाए और वहाँ पर बिल्कुल रेडिकल इन, जिसमें कोई ओपिनियंस ना हो, कोई प्रेजुडिसेस नहीं हो, हैट्रेड नहीं हो दिमाग में, है ना, और ये लोगों के दिलों को जीते, है ना, बहुत मतलब चार्मिंग इस सेंस में हो कि इसकी बातें आकर्षक हों और अपनी मैग्नेनिमिटी को दुनिया में फैलाए। तो वैसे तो ये टॉपिकल है कि भाई कि अपनी बेटी के लिए लिखा है, लेकिन ये लागू होती है पूरी दुनिया में, है ना, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, उस सेंस में ये यूनिवर्सल है ना। ओके।